नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राहुल गांधी से। दरअसल आज लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जो है उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण का जिक्र किया और कहा कि जब भी मैं राष्ट्रपति का अभिभाषण सुनता हूं उनका एक ही किस्सा होता है, राष्ट्रपति का अभिभाषण ऐसा नहीं होना चाहिए। And I must say, I struggled through the President's address to maintain my attention on what was being said, because I had heard pretty much the same President's address the last time and the time before that and the time before that. And it was the same laundry list of things that the government has done. We have done this, we have done this, we have done this, 50 or 100 things that the government has done. And so while I was sitting there, I was thinking, okay, I am being critical about what is being said. And I am saying that this is not the type of President's address that should be delivered. Well, the question came to my mind, what type of address would an India Gathbandhan government deliver? How would that address be different than the address we heard? Because it's no point me saying that it is a laundry list and then not providing an alternative idea. And so today I would like to lay out some dimensions of what an alternative address would look like. सदन में राहुल गांधी ने सिर्फ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण का ही जिक्र नहीं किया, बल्कि कुछ अन्य मुद्दों पर भी जो है वो केंद्र सरकार को घेरा। Any country basically organizes two things. You can organize consumption and then you can organize production. Modern way of saying organizing consumption is services. Modern way of saying organizing production is manufacturing. But there is more to production than simply manufacturing. For example, agriculture also is about production. Now, pretty much every government since 1990 has done a decent job on consumption, on organizing consumption. Which are the companies that organize consumption? Uber organizes consumption. Reliance organizes consumption. Adani organizes consumption. But we have, as a country, failed in organizing production. We have excellent companies that try to organize production. They are the Mahindras of this world. They are the Bajajs of this world. Part of Tata's organizes production, but the record of the country in organizing production is dismal. And essentially what we have done is we have handed over the organization of production to the Chinese. So this mobile phone, even though we are saying we make this mobile phone in India, that is not a fact. This phone is not made in India. This phone is assembled in India. All the components of this phone are made in China. The network that has produced this phone is made in China, is owned by China. So every time we use a phone, every time we wear a Chinese shirt, a Bangladeshi shirt, every time we wear a pair of Chinese sneakers, we are paying a tax to China. संसद के अंदर महाकुंभ में हुई भगदड़ और हत्या का मामला जो है वो सुर्खियों में बना हुआ है। माफ करिएगा, महाकुंभ में भगदड़ के बाद लोगों की मौत को लेकर के लगातार विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष को घेरते नजर आ रहा है। इस बीच महाकुंभ में हुई घटना की जांच को लेकर के सांसद रविशंकर प्रसाद ने बयान दिया है। राष्ट्रपति जी ने जो कुंभ में महान आयोजन चल रहा है उसकी भी चर्चा की है। कल रात तक खबर मिली 35 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। 35 करोड़ लोग। उन्होंने दुख भी प्रकट किया, जो लोग एक हादसा हुआ उसकी भी जांच चल रही है और उस जांच में भी षड्यंत्र की बू आ रही है। जब पूरा जांच सामने आएगी
तो वो हादसा किसने करवाया, उनको शर्म से झुकना पड़ेगा, ये भी मैं कहना चाहता हूं। उपसभापति जी, मुझे एक बात जरूर कहनी है, ये कुंभ का नाम सुनते और सनातन का नाम सुनते उनको परेशानी क्यों हो जाती है, क्या हो जाता है? जिस तरह से और एक बात मैं इस सदन में साफ साफ करना चाहता हूं, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ये आप जान लीजिए। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे संबित पात्रा की। दरअसल जेएनयू से दिल्ली में बसे रोहिंग्या घुसपैठियों पर एक 114 पन्नों की रिपोर्ट सामने आई है, जिसके बारे में संबित पात्रा ने बताया है और साथ ही उन्होंने दिल्ली की जनसंख्या को लेकर के भी इस पर सवाल खड़े किए हैं। प्रयत्न करता हूं तो आज सच्चाई दिखाया और अब दूसरी सच्चाई की बारी है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के विषय में हम सब जानते हैं, वहां बहुत शोध और बहुत सारे रिसर्च के कार्य होते हैं। पिछले हफ्ते एक रिपोर्ट आई है, अनेकों महीनों से एक शोध कार्य चल रहा था, रिसर्च चल रहा था और उस रिसर्च का रिपोर्ट पिछले हफ्ते जेएनयू में जारी हुई है। उसकी एक प्रति वर्षों से हम अध्ययन कर रहे थे और एक समरी बना करके आज आपके सामने आए। क्या था यह शोध कार्य, ये रिसर्च क्या था? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी प्रेजेंट्स रिपोर्ट ऑन इलीगल इमिग्रेंट्स टू दिल्ली एनालाइजिंग सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस। ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, ये बांग्लादेश से और म्यांमार से, बांग्लादेश से आए हुए इलीगल इमिग्रेंट्स और म्यांमार से आए हुए इलीगल इमिग्रेंट्स, जिनको हम रोहिंग्यान्स कहते हैं। तो ये बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्यान घुसपैठियों का दिल्ली से क्या सरोकार है, दिल्ली के राजनीतिक पटल पर उसका क्या असर है, सोशियो पॉलिटिकल पटल पर क्या असर है, इन सब विषयों को लेकर यह 114 पेज का रिपोर्ट है। 114 पेज के रिपोर्ट में मुख्यतः जो बातें कही गई है, मैं उन कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं, आपसे साझा करना चाहता हूं। इसमें कहा गया है कि देयर हैज बीन अ नोटेबल इंक्रीज ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन बिकॉज ऑफ इलीगल माइग्रेशन फ्रॉम बांग्लादेश एंड म्यांमार। बांग्लादेश से जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं और म्यांमार से जो रोहिंग्यान आ रहे हैं, उसके कारण से एक नोटेबल इंक्रीज, बढ़ोतरी हुई है मुस्लिम आबादी में दिल्ली में। और जो शब्द प्रयोग किया गया है, वो कहा गया है कि देयर इज अ चेंज इन द डेमोग्राफी ऑफ द सिटी। दिल्ली शहर के डेमोग्राफी में एक चेंज आया है। आप सोचिए, यह दिल्ली आज से 10 साल पहले, आज से 15 साल पहले जो दिल्ली था, आज वो दिल्ली नहीं। चोरी चोरी, चुपके चुपके, हम जान नहीं पा रहे दिल्ली की डेमोग्राफी बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण और रोहिंग्यान्स के कारण बदल रही, जो कि एक खतरे की सूचक है। और ये खतरे की सूचक कैसे है, यह इस रिपोर्ट में पूरी तरह से बयां की गई है, हर एस्पेक्ट का चर्चा किया गया है। उसमें कहा गया है कि सोशियो इकोनॉमिक फ्रंट पे बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है और खास करके कंस्ट्रक्शन वर्कर और जो लो पेइंग जॉब्स हैं, उसमें एक प्रतिस्पर्धा, उसमें एक कंपटीशन शुरू हो गया है। जो कंस्ट्रक्शन वर्कर कल हमारे पूर्वांचली भाई होते थे, हमारे हरियाणा से आए लोग होते थे, दिल्ली के लोग होते थे, हमारे उड़ीसा से आए कई लोग यहाँ प्लम्बर का बहुत अच्छा काम करते हैं, हमारे केरल के भाई यहाँ आते थे और यहाँ कई सब लोग कंट्रीब्यूट करते थे दिल्ली को आगे बढ़ाने में, तभी दिल्ली बनी। सभी का कंट्रीब्यूशन रहता था, हर स्टेट के लोग यहाँ आके कंट्रीब्यूट करते थे। वो मुख्यतः हमारे पूर्वांचली भाइयों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है। मगर उनके काम में सेंधमारी करना, ये जो बांग्लादेशी घुसपैठी और ये जो रोहिंग्यान आए,
गैर कानूनी तरीके से इन्होंने उनके काम में सेंधमारी कर दी। जो काम हमारा पूर्वांचली भाई करता था, दिल्ली का मूल वासिंदा करता था, जो उड़ीसा का मेरा भाई करता था, अब धीरे धीरे वहां रोहिंग्या घुस गए, बांग्लादेशी घुस गए। जो पैसा मेरे बिहार के भाई को जाना चाहिए, जो पैसा मेरे बिजवासन के भाई को जाना चाहिए, जो पैसा मेरे मोती नगर में रह रहे भाई को जाना चाहिए, या उड़ीसा से आए हुए मेरे भाई को जाना चाहिए, वो पैसा अब रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान ले जा रहा है। ये कहा है कॉम्पिटिटिवनेस इन दी वर्क एटमॉस्फेयर। सबसे भयावह बात जो इस रिपोर्ट में, मैं तो संक्षेप में बताऊंगा, मगर एक डिटेल इसमें प्रेजेंटेशन, और वो है पॉलिटिकल पैट्रोनेज। यह सारा कुछ पॉलिटिकल पैट्रोनेज के कारण हो रहा है, अर्थात कुछ राजनीतिक दल इसको बढ़ावा दे रहे हैं, पैट्रोनेज दे रहे हैं। यहां लिखा है पॉलिटिकल पैट्रोनेज प्लेज अ क्रूशियल रोल allowing the steady influx of undocumented Bangladeshi and Rohingyans. Undocumented, ये जो बांग्लादेशी और रोहिंग्यान आ रहे हैं, ये अनडॉक्यूमेंटेड है, कहीं डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। और इसमें पॉलिटिकल पैट्रोनेज और पॉलिटिकल पार्टी, खास करके आम आदमी पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का तो ये सालों से धंधा है, मगर ये जो आम आदमी पार्टी है, इसका एक क्रूशियल रोल है, उसकी एजेंसीज बनी हुई। और आगे इसमें और भी भयावह बातें लिखी गई। इसमें लिखा गया है कि हाउ द पॉलिटिकल पार्टीज एंड देयर accomplices, उनकी जो बाकी पार्टियों के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, ये कैसे फेक वोटर रजिस्ट्रेशन को फैसिलिटेट कर रहे हैं फॉर दीज माइग्रेंट्स। इनके लिए फेक, ये बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या के लिए फेक वोटर बनाना, रेजिंग कंसर्न्स अबाउट इलेक्टरल इंटीग्रिटी एंड डेमोक्रेटिक मैनिपुलेशन। मतलब ये फेक वोटर बना करके ये बांग्लादेशी और ये रोहिंग्या जो है, ये हमारे इलेक्टोरल सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे स्मृति ईरानी की, जो आज दिल्ली में प्रचार प्रसार के लिए पहुंची। दरअसल दिल्ली चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है, ऐसे में भाजपा ने पूरी ताकत अंतिम दिन झोंक रखी है। ऐसे में स्मृति ईरानी भी प्रचार प्रसार के लिए पहुंची और दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने का भी दावा किया। जनता पार्टी के संगठन के एक अहम हिस्सा हमारे कार्यकर्ता हैं। एक कर्मठ कार्यकर्ता को मेरी पार्टी ने आदर्श नगर से आदर्श उम्मीदवार बनाया। राजकुमार भाटिया जब जा रहे हैं गली गली, वहां पर मोदी की गारंटी गूंज रही है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस बार जनता कह रही है अब की बार राजकुमार। मेरी बहुत मैं इतना ही कहना चाहूंगी, दिल्ली की जनता मोदी की गारंटी पर विश्वास कर कमल का बटन जरूर दबाएगी और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी जीत का परचम लहराएगी। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से बजट को लेकर के हमला बोला है और सवाल पूछा है कि 11 सालों में बिहार को बजट में क्या मिला है, आप लोग ही बताइए। 11 साल में अब तक क्या मिला बजट में? 11 साल के 12वां साल का है ना ये। 11 साल तक तो अब तक बजट पेश कर रहे थे, क्या मिल गया बिहार को? कुछ हुआ पूरा वादा इनका? कोई काम हुआ है 11 साल में जो आप इस 12वीं बजट को मान रहे हो? हम तो बोल रहे 11 जो पहले बजट पेश हुआ उसका क्या हुआ, उसका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। ये केवल जुमलेबाजी है और कुछ नहीं। पूरी तरीके से बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। अब कंपेयर कर लीजिए ना, गुजरात और बिहार को कितना मिला है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। सब कुछ तो गुजरात के लिए किया इन लोगों ने, बिहार के लिए कहाँ कुछ किया है। सौतेला व्यवहार किया, विशेष राज का दर्जा पहले भी पिछला बजट में अनाउंस था ना, लगभग 60,000 करोड़ के आसपास। कहाँ है उसका क्या हिसाब है? मिला कि नहीं मिला, मिला तो कहाँ खर्च हुआ, इसका हिसाब किताब तो बताना ही चाहिए लोगों को। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे स्वाति मालीवाल की। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल यमुना नदी से जल लेकर पूर्वांचल की महिलाओं के साथ आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के आवास पर जाएंगी और इसको लेकर के उन्होंने कहा है कि यमुना नदी जो है वो आज जो नाला बनी है, इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल है। यमुना नदी हमारी माँ है
और आज अरविंद केजरीवाल जी की वजह से ये सीधे सीधे एक नाला बन चुकी है। आज हम लोग यहाँ पे हजारों की तादाद में महिलाओं के साथ आए हैं, पूर्वांचली महिलाएं आई हैं और यहाँ पे यमुना नदी का हालत इतनी गंदी है, इतना बुरा हाल हो रखा है, इतनी बदबू आ रही है कि हमसे खड़ा तक नहीं हुआ जा रहा। तो ये सारी पूर्वांचली महिलाएं अभी हमारे साथ अरविंद केजरीवाल जी के घर जा रही हैं। वो उनसे सवाल पूछना चाहती हैं कि 7500 करोड़ रुपए जो 10 साल में यमुना नदी की सफाई में लगे वो कहां गए। वो सवाल पूछना चाहती हैं कि छठ पूजा पूर्वांचली कहां करें। लोगों में बहुत गुस्सा है क्योंकि जब जरूरत पड़ती है तब तो हाथ जोड़ के आ जाते हैं और जब जरूरत पूरी हो जाती है उसके बाद यमुना नदी का आज ये हाल हो जाता है। सारी महिलाओं का कहना है कि छठी मैया का श्राप लगेगा अरविंद केजरीवाल को। और आज यमुना नदी जो हमारी माँ है वो एक वेंटिलेटर पे पड़ी है, इतना बुरा हाल हो रखा है, हर समय वो जहर पी रही हैं और मर रही है तिल तिल करके। और अरविंद केजरीवाल जी जो बहुत बड़े आदमी बन गए, बहुत बड़े शीश महल में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में रहते हैं, वो अभी तक इसकी यमुना नदी की सुध लेने नहीं आए। तो उनको ये सारी महिलाएं अभी इकट्ठा होकर हम अरविंद केजरीवाल जी के घर जा रहे हैं। हम उन्हें चुनौती देते हैं कि महिलाओं से इतना डरा मत करें, बाहर आए, सामने आए, घर के बाहर निकलिए। ये जो पानी हमने इकट्ठा करा है ना, यमुना नदी का काला पानी, ये हम उनके लिए लेके जा रहे हैं। पानी के अंदर डुबकी लगाए और थोड़ा ये पानी पी भी ले। ये बनने चले थे यमुना का लाल और बन के रह गए शराब के दलाल। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह की, जो आज दिल्ली के छतरपुर के अर्जुनगढ़ मेट्रो स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने चुनाव प्रचार किया और बीजेपी की जीत का दावा भी किया। माहौल आप देखिए, आप प्रत्यक्ष आपके सामने है किस प्रकार का माहौल है। इस बार दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है, चाहे जो भी हो, भारतीय जनता पार्टी को 2/3 मेजॉरिटी दिल्ली में देनी ही देनी है। अब लोग भी आश्वस्त हैं कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। केजरीवाल जी का कहना है कि अगर डबल इंजन सरकार दिल्ली में आई तो सबको रौंद देगी और सारा इलेक्शन उनसे यह सवाल पूछिए क्या डबल इंजन की सरकार ने इस देश का विकास कितनी तेजी के साथ किया। इसके पहले कभी ऐसा विकास नहीं हुआ है। राज्यों का विकास भी कितनी तेजी के साथ हो रहा है। राज्यों का विकास यदि न होता तो हम कैसे कह सकते थे कि सारे देश का विकास तेजी के साथ हो रहा है। भारत में इकोनॉमी की साइज, अर्थव्यवस्था का आकार पहले से बढ़ा है। अभी सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता। ये हमारे आंकड़े तो नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी फाइनेंशियल फर्म्स के ये आंकड़े हैं। बड़े बड़े आर्थिक जो विशेषज्ञ हैं ये उनके द्वारा दिए गए आंकड़े हैं। बजट में इस बार मिडिल क्लास को लेकर जो अनाउंसमेंट हुआ और दिल्ली में बहुत बड़ा मिडिल क्लास है, तो क्या लग रहा है उसका फायदा भाजपा को चुनाव में होगा? जो बजट में अनाउंसमेंट हुआ 12 लाख वाला, इससे बहुत बड़ा मिडिल क्लास है दिल्ली में, क्या लग रहा है कि इससे चीजें बदलेंगी? देखिए, हम चुनावी लाभ की दृष्टि से कोई कदम नहीं उठाते हैं। बराबर हमारा कदम इस दृष्टि से उठाया जाता है कि देश का लाभ कैसे होगा और हमारे जो कमजोर तबके के लोग हैं और मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनकी न्यूनतम आवश्यकताएं कैसे पूरी हों और आर्थिक दृष्टि से भारत कैसे सशक्त भारत बनेगा, यह इस सोच के साथ हम लोग कदम उठाते हैं। सर, गृह मंत्री ने भी केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को महाठग की जोड़ी बोला है। हाँ। क्या सर आप इस बात से सहमत हैं? देखिए, इसमें कहीं दो राय नहीं है। दिल्ली की जनता को इन लोगों ने बहुत धोखा दिया है, बहुत धोखा दिया है, इसमें कहीं दो मत नहीं। और सर, क्या इतने सालों बाद दिल्ली की जनता बदलने जा रही है आम आदमी? आप यहाँ का ही माहौल देख लीजिए किस प्रकार का माहौल है। अब दिल्ली में लोगों ने मन बना लिया है कि अब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने पर ही दिल्ली का विकास होगा, क्योंकि लोग देख रहे हैं प्रत्यक्ष देश के अन्य राज्यों का विकास यदि तेजी के साथ हो रहा है। तो अगर सीटों में बात करें तो कितनी सीटों में उम्मीद है कि भाजपा? मैं मानकर चलता हूं कि जैसा माहौल है इस समय दिल्ली का, भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत यहां प्राप्त करेगी। वहीं दूसरी ओर आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी दावा किया है और यह बातें कही है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। नमस्कार। अब पूरी दिल्ली के माहौल से ये तो साफ हो गया है कि आम आदमी पार्टी ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रही है और भारतीय जनता पार्टी अपने एग्जिस्टेंस के सबसे बुरी हार की तरफ बढ़ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी जाहिर तौर पे कुछ भी करेगी
जो बीजेपी के अंदर से खबरें आ रही हैं कि वो दिल्ली पुलिस का बेजा इस्तेमाल करने वाली है, सारे कानून संविधान एक तरफ ताक पे रख के दिल्ली पुलिस को पूरी गुंडई पे उतारा जाएगा। ये अपने खूब सारे गुंडों का इस्तेमाल करके लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन जो सबसे खतरनाक चीज़ निकल के आ रही है वो ये कि आपके पास आएंगे, खासकर हमारे गरीब तबके के पास, आपको पैसे देंगे और आपको कहा जाएगा, एक डिब्बा लेके आएंगे, कहेंगे इलेक्शन कमीशन से आए हैं और आप अपना वोट इसमें डाल दो। एक कागज़ देंगे, बोलेंगे आप अपना वोट इसमें डाल दो और काली स्याही लगवा लो अपनी उंगली पे और 3,000 रुपये, 4,000 रुपये, 5,000 रुपये ले लो। पहले आपको ये जानकारी दे दूं कि इलेक्शन कमीशन घर जाके वोटिंग नहीं करवाता। इस धोखे में मत रह जाना, ये झूठ है, ये फरेब है, ये धोखा है, ये 420 है। ये जो करने जा रहे हैं ये बहुत बड़ा धोखा करने जा रहे हैं। इन्होंने ऑलरेडी शुरू कर दिया। मुझे कई झुग्गियों से फ़ोन आए हैं कि घर घर जाके कह रहे हैं कि चुनाव के पहले वाली रात को आएंगे, आपको वोट आपके घर पे ही डलवा के लेके जाएंगे। वोट घर पे नहीं डलता, किसी हालत में वोट घर पे नहीं डलता। उनके धोखे में मत आ जाना। वो केवल और केवल आपकी उंगली पे काला निशान लगाने आ रहे हैं ताकि आप वोट डालने ना जा सकें। अगर आपकी उंगली पे काला निशान लगाते हैं तो बिल्कुल मत लगवाना। अगर आप वोट डालने नहीं गए तो ये सोच लेना कि आप अपने और अपने परिवार के साथ धोखा कर रहे हो। एक तरह से आप अपने आत्महत्या का वारंट लिखवा रहे हो। अगर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में आ गई, ये आपकी ज़मीनें जहाँ जहाँ झुग्गियाँ बसी हुई हैं, इनकी नज़र आपकी ज़मीनों के ऊपर है। ये 1 साल में दिल्ली की सारी झुग्गियाँ तोड़ देंगे और ये ज़मीन जो है ये अपने दोस्तों को दे देंगे। बम्बई में सबसे बड़ा स्लम जो है धारावी, उसकी ज़मीन उठा के इन्होंने अपने एक दोस्त को दे दी। दिल्ली की झुग्गियों की को भी नहीं छोड़ने वाले, दिल्ली की सारी झुग्गियाँ तोड़ देंगे, ये ज़मीन उठा के अपने दोस्त को दे देंगे। इनकी नज़र आपकी ज़मीनों पे है, तो इनके धोखे में मत आना। केवल 3-4 हज़ार रुपए के लिए अपने परिवार को मत बेच देना। अपने सर से छत मत खराब कर देना, छत टूट जाएगी आपके सर से अगर आपने उस दिन 3-4 हज़ार रुपए के लिए अगर अपनी उंगली पे काला निशान लगवा लिया। तो किसी हालत में काला निशान मत लगवाना। ये आपको आके डराएंगे, पैसे देंगे, कहेंगे हमें पता चल जाता है अंदर किसको वोट दिया। किसी को पता नहीं चलता। पैसे दें तो ले लेना, लेकिन पैसे के बदले में अपनी उंगली पे काला निशान बिल्कुल मत लगवाना। फ्री में पैसे दे रहे हो तो ले लेना, जो सामान दे रहे हो ले लेना, लेकिन उंगली पे काला निशान किसी हालत में मत लगवाना। उसका मतलब है अगले दिन आप वोट डालने नहीं जा पाओगे। इनको किसी को पता नहीं चलता अंदर। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी ने बहुत बड़े स्तर के ऊपर ये सारी गुंडागर्दी रोकने का इंतजाम किया है। पूरे दिल्ली के अंदर जगह जगह झुग्गियों में स्पाई कैम और बॉडी कैम दिए जा रहे हैं। बॉडी कैमरा होता है जिससे पता चल जाए, जिससे सारी रिकॉर्डिंग हो जाती है। स्पाई कैम हो जाता है छुपा हुआ कैमरा होता है, स्पाई कैम जासूसी कैमरा होता है। ये सारे कैमरे जगह जगह पूरे दिल्ली के झुग्गी बस्तियों के अंदर और गरीब तबकों के अंदर बांट दिए गए हैं। वॉलंटियर्स को, कार्यकर्ताओं को और समर्थकों को दे दिए गए हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करती है तो तुरंत वो कैमरे के अंदर रिकॉर्ड हो जाएगा और इन लोगों के ऊपर हम कार्रवाई करवाएंगे। पूरी दिल्ली के अंदर मीडिया की कई मीडिया वाले हैं जो देश से प्यार करते हैं। ऐसे मीडिया वाले तैयार हो गए हैं, झुग्गियों के अंदर जाके रात को कई मीडिया कर्मी सोएंगे, वहीं सोएंगे और रात से वहां से लाइव टेलीकास्ट होगा। अगर बीजेपी के गुंडे कुछ भी किसी भी तरह की बदमाशी करते हैं तो वहां से लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। कई मीडिया हाउसेस से बात हो गई है, वो तैयार हो गए हैं। बाकी मीडिया हाउसेस से भी मेरी निवेदन है कि पूरे देश के हर लैंग्वेज के सारे टीवी चैनल दिल्ली पहुंचें और दिल्ली पहुंच के हर झुग्गी बस्ती के अंदर अपनी अपनी वैन खड़ी कर दें, अपने अपने लोग खड़े कर दें, एंकर्स खड़े कर दें, अपने अपने पत्रकार खड़े कर दें, ताकि इनकी गुंडागर्दी को और बेशर्मी को उजागर देश के सामने उजागर किया जा सके। पूरे दिल्ली के अंदर हमने ढेरों क्विक रिस्पांस टीम, QRT बनाई है दिल्ली के अंदर। वो टीम तुरंत 10-15 मिनट के अंदर आपके यहाँ पहुँच जाएगी और इन लोगों को गैर संवैधानिक, गैर कानूनी काम करने से रोकेगी, गलत काम करने से, पाप करने से इन लोगों को रोकेगी, इनको गिरफ्तार करवाएंगे।
महाकुंभ भगदड़ का मामला राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही जगह काफ़ी ज़्यादा तेजी के साथ विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे हैं। ऐसे में महाकुंभ भगदड़ को लेकर के सपा सांसद जया बच्चन की भी प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने सही आंकड़ा पेश करने के लिए कहा है। देखिए, इस देश में इस वक्त बहुत बड़ी समस्या है और वो है जो कुंभ मेला में हुआ है। हजारों लोग चले गए हैं, सही नंबर इनको देना चाहिए और हाउस में इस तरह के दोगले बातें नहीं करनी चाहिए। जनता के सामने बात करिए, सफाई दीजिए। झूठ बोल रहे अरेंजमेंट्स किया, अरेंजमेंट्स आर ओनली फॉर वीआईपीज, नॉट फॉर आम आदमी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के छात्रों के साथ बातचीत की और साथ ही छात्रों से उन्होंने पूछा कि उन्होंने सुना है कि दिल्ली में 9वीं कक्षा के बाद छात्रों को आगे जाने नहीं दिया जाता है, इसके पीछे क्या कारण है। अभी सुनिए छात्रों ने उसका जवाब कैसे दिया और नरेंद्र मोदी ने छात्रों से किस तरीके से बातचीत की। मैंने सुना है ये दिल्ली में 9वीं कक्षा के बाद बच्चों को आगे जाने ही नहीं देते। जो बच्चे गारंटी है पास होंगे उन्हीं को जाने दें। क्यों? क्योंकि उनका रिजल्ट खराब हो जाएगा तो मेरी सरकार की इज्जत खराब हो जाएगी, इसलिए बड़ा बेईमान। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे बिहार के भागलपुर में, जहां पत्रकारों से पिटाई मामले में सांसद अजय मंडल ने माफी मांग ली है और कहा कि भविष्य में नहीं होगी ऐसी कोई भी गलती। दरअसल पत्रकार कुणाल शेखर और सुमित कुमार के साथ हुई मारपीट के मामले में भागलपुर से जदयू के सांसद अजय मंडल ने दोनों पत्रकारों से अस्पताल में जाकर मुलाकात की और फिर उनसे माफी मांगी। सांसद ने कहा कि वह भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेंगे और इस तरह की घटना को दोहराया नहीं जाएगा। सांसद अजय मंडल ने माफी मांगते हुए कहा, मैं समझता हूँ कि जो हुआ वह बिल्कुल गलत था। उस दिन झंझट हो गया था हमारे लोगों से, हमारे कुछ पत्रकार भाइयों से, उन्हीं को मैं देखने आया था और उन्हें गले लगाने आया था। क्या गलती थी पत्रकारों? अब एक घर में दो सब हरिया रहता है, ढनमना गया तो फिर जमा होकर के एकत्रित होकर के साथ इसलिए आए थे सर यार। आपके द्वारा भी गाली गलौज के साथ मारपीट की गई है, सीधा वीडियो लाइव में है, उसके बाद फोन रिसेट कर दिया गया, फोन छीनकर भागा गया गाड़ी में बैठकर। देखिए, हम गाली उतर करके जो अपने बॉडीगार्ड ने जो मेरा कुकर्म कर रहा था उनको समेट रहे थे, उनको गाली दे रहे थे। क्या पत्रकार ने आपके बॉडीगार्ड का पिस्टल जो है ऐसा आपने आवेदन में जिक्र किया? देखिए, जब मैंने बाद में जानकारी लिया कि क्या मामला था तो उसको देखा गया, तो अब वो उस मामले पर चला जाएगा। अभी जो फिलहाल का मामला था, जो लिखे थे या जो भी किए थे, अब आप इतने समझिए हम लोगों का। संसद महोदय, ये बात क्लियर किया जाए कि आपने अपनी गलती स्वीकार की है। देखिए, आप जिस बात को कहना चाह रहे हैं, नहीं, हम नहीं कहना चाह रहे, बस एक सीधा सा सवाल है, क्या आपने अपनी गलती स्वीकार करके माफी मांगी है? आप जिस बात का सवाल कर रहे हैं जी, हम जब मृणाल के और कुणाल जी के घर पर आएंगे तो आप ये वहाँ सवाल कीजिएगा, सब बात मृणाल से करके सर, मृणाल से करके घर की बात नहीं है, वो इस मृणाल से कर, हम नहीं जानते मृणाल से। हम पत्रकार की बात है, वो हैसियत से, वो पत्रकार के हैसियत से आराम से बात कीजिए ना। पत्रकार के हैसियत से, एक पत्रकार के हैसियत से, एक साथी होने के नाते मेरा सवाल है आपसे, आज मिलने आए हैं, आपने अपनी गलती स्वीकार करके माफी मांगी है? देखिए, जब गलती और स्वीकार की बात आएगी तो हम बोले ना कि उनके मृणाल जी और कुणाल जी के घर पर जब आए तब ये बात। पत्रकार हैं और वो हमारे साथी, शांत रहिए ना, वो पत्रकार हैं, वो हमारे साथी हैं। पहले कुणाल जी का वो पूर्ण रूपेण स्वस्थ होने दीजिए, इसके बाद कुणाल जी के सामने मैं आपको सारी बातें बता दूंगा। सर, आपके जो गुर्गे हैं, आपके जो गुर्गे हैं उसको हटाएंगे आप? आपके जो गुर्गे हैं उसको हटाएंगे आप? कुणाल जी से जाकर के मिल लीजिए। आपके जो गुर्गे हैं। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।